Okay, so today we are going to learn our new poem, that is Dover Beach, okay, which is written by Matthew Arnold. Okay, Matthew Arnold. In the last class, I discussed about some biographical details of Matthew Arnold. So there are few characteristics of his writing like pessimism, realism, then loss of faith. Okay, religious faith basically. This is religious faith. Then doubt, confusion. Okay, and skepticism. These are major characteristics of his writing. Pessimism means हिंदी में कहते हैं निराशावाद. Means he feels depressed in the society because he sees he visualizes the society in different way. Because of science and technology, the world was changing very fast. So you can say materialism was increasing. Materialism means हिंदी में कहते हैं ना भौतिकवाद, कि जो भौतिक सुविधाओं के लिए वस्तुएं जुटा रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो उसको लेकर के ठीक है इनको काफी दिक्कत फील हो रहा था. साइंस वर्सेस रिलीजन. Science versus religion, there was a conflict which is known as Victorian conflict. Okay, in the last class I discussed about Victorian conflict. There was a conflict between science and religion. Okay, people were losing faith in Christianity, or you can say faith in religion, and they were moving towards science, or they were following more the scientific things. It was because at that time so many industrialization was going on, so many inventions have been done, and moreover so many philosophers also discussed about various things of the Christianity. Like one writer is there, David Strauss. Okay, he was German scholar basically. He published one book in 1835 or 36. Basically, it was published in 2-3 volumes. So 1835-36, it was published. One book. That book name was, of course, in German. It was in German, but when it was translated, its title is "The Life of Christ." The Life of Christ. It was translated by George Eliot. Okay. Of course, it has not direct relation to this poem, but in the background, this book has also disturbed to Matthew Arnold. Okay, that's why he feels depressed, or you can say he has a lot of anguish and anxiety in his mind by seeing the world where it is going on. So this book is The Life of Christ. It was published in 1835-36. Later on, it was translated into English by George Eliot. Okay, George Eliot is the name of a female writer. Her real name was Mary Evans. Mary Evans. Her original name was Mary Evans. Okay, Mary Evans. M-A-R-Y-E-V-A-N-S. Mary Evans. Her pen name was George Eliot. ठीक है, George Eliot. She is very famous writer. Okay, like Silas Marner, it is very famous book. Okay, of George Eliot. So, in this book, what David Strauss advocated, he said that all the gospels related to miraculous stories are fake, or you can say are myths. कहने का मतलब है कि इनका कहने का कि जो न्यू टेस्टामेंट के गॉस्पेल्स में बहुत सारी जो कहानियां दिखाई गई हैं जीसस के बारे में, कि उन्होंने ये इतने चमत्कार किए अपने लाइफ में, वो सारी मिथिकल हैं. मतलब इट हैज नो फैक्ट और रियलिटी, बट दे आर कंस्ट्रक्टेड और दे हैव बीन एडेड लेटर ऑन बाय सम क्रिश्चियंस. ओके, ये मानना था इनका. इन्होंने प्रूव किया होगा उस किताब में, मैंने पढ़ी नहीं इस किताब को, बट उसके एक लाइन में जिस्ट ये है
कि जो न्यू टेस्टामेंट जिसको पूरे अंग्रेज फॉलो करते थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट फॉलो करते हैं न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, ही वाज प्रोटेस्टेंट मैथ्यू अर्नोल्ड। सो न्यू टेस्टामेंट को फॉलो कर रहे थे। जब न्यू टेस्टामेंट के ऊपर एक किताब आई डेविड स्ट्रॉस की, वो जर्मन फिलोसोफर, इस बुक में इसने इस बात पे जोर दिया और कहा कि इसमें इस गॉस्पेल्स में, न्यू टेस्टामेंट के गॉस्पेल में बहुत सारी जो चमत्कारिक स्टोरीज लिखी गई हैं, ये सारी झूठ है, मतलब ये मिथ्स हैं, दे आर नॉट रियल एंड इट हैज नो हिस्टोरिकल एविडेंस, कि इनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास नहीं है। तो ये चीज बहुत तेजी से फैला वहां पे और उन लोगों को बहुत ज्यादा एक तरह से डिस्टर्ब किया जो लोग उसमें विश्वास करते थे। ही वॉज बेसिकली, मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज बिलीवर इन क्रिश्चियनिटी, उनके जो गुरु वगैरह थे, ठीक है, न्यूमैन वगैरह सब, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा फॉलोअर थे। अब इस बुक, जब ये बुक आ गई तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया, हालांकि उसमें बड़ी एज इनकी कम थी, इतना 1822 में आई थिंक पैदा हुए हैं ये, 1822, 35, 13 साल के थे। उस बुक का इम्पैक्ट उस समय तो नहीं आया जब बुक आई, लेकिन धीरे धीरे जब चर्चा हुआ और लोग पढ़ते गए, बढ़ते गए, इसको देखे जब, तो काफी क्रिश्चियनिटी में डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, पूरे सोशल डिसऑर्डर आ गया लोगों को अंदर। इसी को आधार बना करके लॉस ऑफ फेथ और लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, बेसिकली यहाँ पे जो फेथ है क्रिश्चियनिटी में लोगों का कम होता चला गया, इसी को आधार बना करके ये पोएम लिखी गई है। सो लेट्स सी द पोएम। ओके, बिफोर गोइंग टू सी द पोएम, let's have some background of this poem. As its name is Dover Beach. Okay, Dover is the name of a place. Dover here, Dover is name of a place. If you go in England or if you see the map of England, like for example it is like this. Okay, I am not making correctly here, not knowing exact figure, and here it is France. This is France. This is England. Okay, here Wales is there, then there Scotland is there, here Ireland is there, Ireland. Okay, these four makes Great Britain or UK, you can say. So if you see here, southeast region, this region is called as Kent region. Okay, Kent. In this, here, this is water, basically sea. Okay, Celtic Sea is there here, Celtic Sea, and this is called as, this water strait, this strait is called as English Channel. Okay, English Channel मतलब दो देशों के बीच में पानी का एक बहुत पतला ये है, नैरो रास्ता है, ये यहाँ पे बहुत पतला है। जहाँ डोवर बीच से ठीक सामने फ्रांस है, ये फ्रांस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ फ्रांस है, ये फ्रांस के ठीक, यहाँ डोवर के ठीक सामने यहाँ पे फ्रांस है। फ्रांस का जो कोस्टल एरिया वहां से दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, और इसकी चौड़ाई बहुत कम है, चौड़ाई लगभग 20 माइल्स है, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे होगा, देख लीजिएगा एग्जैक्ट। 20 माइल्स मतलब लगभग 35-36 किलोमीटर, ठीक है। तो 34-35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है वहां पे, जिससे सी, इस सी में से सारे सीप वगैरह इधर उधर पास होते रहते हैं। यहाँ पे इस पोएम में राइटर यहाँ पे खड़ा है, डोवर बीच पे खड़ा है, ही इज वॉचिंग टू फ्रेंच कोस्ट एंड दिस सी, ठीक है, यानी जो यहाँ पे खड़ा होकर के ठीक सामने, उसके सामने क्या है, ये है इंग्लिश चैनल, इसको वॉच कर रहा है, और ठीक सामने जो दूसरा देश दिखाई दे रहा है वो कौन सा देश है, फ्रांस। ओके, यहाँ पे फ्रांस है। तो आई होप कि ये टाइटल आपको क्लियर हो गया। डोवर बीच का मीनिंग क्या है यहाँ पे, डोवर इज नेम ऑफ ए बीच। ओके, इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ केंट इन इंग्लैंड। ये पूरा इंग्लैंड है, इधर आपका स्कॉटलैंड आता है, इधर वेल्स आता है, फिर ये आयरलैंड आता है, इस तरीके से सारे हैं, ठीक है। यहाँ भी डायरेक्ट मिट्टी का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, अगर होगा बहुत पतला होगा। सो दिस इज, so let's see some subject matter of this poem. Basically this poem is also called as honeymoon poem. Okay, called as honeymoon poem. Of course this is very ironical to say this one, because there is nothing like any romance or romantic thing in this poem, but the poem starts
in a romantic mood, but later on it becomes very thoughtful. Okay, so it is also called as honeymoon poem because when exactly this poem was written, it is not clear, but it is clear that in 1851 Matthew Arnold visited Dover Beach along with his wife. Okay, in 1851 Matthew Arnold visited Dover Beach along with his wife. So we can consider that the start of this poem may be in 1851, but this poem was first time published in 1867. Okay, it was first time published in 1867. I hope clear. Okay, this poem is called as a dramatic monologue. This is a dramatic monologue basically. Dramatic monologue means a kind of poem in which a speaker addresses to an imaginary audience. Okay, so in this poem the speaker is writer himself. So who is the speaker? The speaker is poet himself. Okay, so this is dramatic monologue and the speaker is writer himself, and subject matter in this poem is loss of religious faith. Why this faith loss is there? Because of scientific development and scientific thinking. Okay, basically what is science? Science takes everything in cause and effect relation. Means if something happens, there is a cause for it, or if something is there, that must become cause for something else. Okay, मतलब एक cause और effect का relation होता है वो scientific होता है, इसमें एक proof की जरूरत पड़ती है कि अगर मैं चाक है तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इट मीन्स लिखने के लिए हमको चाक चाहिए, तो ये साइंटिफिक हो गई. अगर कोई ऐसे बोले नहीं इधर हमने देखा और लिख गया, तो ये यकीन नहीं कहा जाएगा, मिरेकुलस हो जाएगा, और जितनी रिलीजियस चीजें हैं उसमें मिरेकल ज्यादा दिखाए गए हैं. ठीक है, तो यही चीज साइंस वहां रिजेक्ट करता है, वो किसी भी मिरेकल में विश्वास नहीं करता, आज भी नहीं करता है साइंस. ठीक है, ये बात अलग है कि पब्लिक कितना मान रही है कितना नहीं मान रही, वो अलग बात है. ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन क्रिश्चियनिटी हुआ यूरोप में ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड, ये बहुत तेजी से हुआ. इन 1859 another book, that is origin of species, who has written this one? चार्ल्स डार्विन. यस, ये पक्का एमसीक्यू आएगा, 100% लिख लो इसको नोट करके. ठीक है, ये वाला भले ना आए लाइफ ऑफ क्राइस्ट करके, ठीक है, डेविड स्ट्रास का, लेकिन ये पक्का आएगा. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पूरी नाम है उसका ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बट जनरली ही इज नोन एज चार्ल्स डार्विन. ओके, कई बार रॉबर्ट डार्विन भी बोलते हैं लोग, या सिर्फ डार्विन. ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पक्का आने वाला एग्जाम में, चाहे जो पेपर बनाए चाहे जहां से बनाए, पक्का आएगा ये, मान के चलिए. ठीक है, ये बुक आई, इस बुक में भी साइंटिफिक डेवलपमेंट या जीव कैसे उत्पत्ति हुई इसके बारे में बताया गया, कैसे जीव सर्वाइव की, मीन्स हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्वाइव्ड इन द सोसाइटी और इन द वर्ल्ड. सो ये सारे चीज इसमें डिस्कस किया गया है, और ये बहुत सारे मिरेकुलस चीजें जो थी रिलीजन की, सबको रिजेक्ट करता चला गया. ठीक है, एक बहुत एग्जांपल चलता है जिसको सुने ही होंगे आप लोग, पृथ्वी वाला, सोनो पृथ्वी वाला, बताएं लास्ट क्लास में. ठीक है, सो लेट अस सी द पोएम. ये सब्जेक्ट मैटर इसका मेन एक लाइन में है. इन दिस पोएम ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज एंग्विश or frustration, okay, and doubt. ठीक है, मतलब ये दुनिया इतनी तेजी से बदलती चली गई कि लोगों के ऊपर डाउट होने लगा है. अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पे आगे पोएम में भी कि कैसे डाउट बढ़ रहा है लोगों के ऊपर. सो लेट्स सी द पोएम. यू कैन ओपन इट. ओके,
द सी इज काम टू नाइट। ओके, सिचुएशन क्या है, रात का समय है। राइटर डोवर बीच के इस प्लेस पे खड़ा है, डोवर बीच पे, ठीक है, ऑन द क्लिप्स ऑफ डोवर बीच। ठीक है, क्लिप्स का मतलब जो ऊंचाई है, पहाड़ियों की, मतलब एक तरह से पहाड़ी तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, थोड़ा ऊंचा प्लेस है, जो पथरीला है, ऊंचा प्लेस। ठीक है, और वो कोई ऐसा नहीं कि नया था, वो बहुत पहले का बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक लाइट हाउस रोमन्स ने बनाया था, जब अंग्रेजों को गुलाम बनाए थे रोमन्स, उस समय का बना हुआ, आज भी वो है, एग्जिस्ट करता है वहां पे लाइट हाउस। लाइट हाउस मतलब एक बड़ा सा ऊंचाई सा पोस्ट बनाया जाएगा, इस पर लाइट जलाई जाएगी, उस शिप को डायरेक्शन देने के लिए होता था, उसको लाइट हाउस कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर खड़ा है, अब इसके सामने देख रहा है, शाम का समय है, फुल मून लाइट है, यानी चांदनी रात है, पूरी चांदनी रात। अब आगे देखिए क्या है, द सी इज कम टू नाइट, द टाइड इज फुल, मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वॉश आउट इन ट्रैंक्विल बे। ओके, इसमें एग्जैक्टली अगर सर देखो, ये मीनिंग, ये पूरी पोयम मेटाफोरिकली लिखा गया है। मेटाफर समझते हैं ना, ठीक है, मेटाफर जहां पे एक जो शब्द दिया गया है वो मीनिंग तो रहेगा ही, उसके अलावा उससे एसोसिएटेड जो मीनिंग है, एग्जैक्ट वो मीनिंग है। जैसे वह शेर है, ठीक है, अगर आपने किसी को कहा वह शेर है, ही इज अ लायन, ठीक है, तो व्यक्ति लायन नहीं है, मीन्स लायन से एसोसिएटेड जो क्वालिटीज है लायन की, वो उसके अंदर है। ठीक है, ये मेटाफर होता है। तो यहां पर भी डोवर बीच जस्ट एक जगह का नाम दिया है, बट राइटर ये समझ लीजिए कि वहां पे खड़ा होकर बोल रहा है, बट ये प्लेस, कोई भी एक प्लेस डोवर बीच हो सकता है पूरे यूरोप का। क्यों? क्योंकि वहां सब जगह यही हाल है, सब लोग डाउट में है, कंफ्यूजन में, लॉस ऑफ फेथ जा रहा है लोगों का। ठीक, मतलब लोगों का लॉस ऑफ फेथ बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जो फेथ थी क्रिश्चियनिटी में तो घट रहा है। क्यों घट रहा है? बिकॉज ऑफ साइंस। ओके, so the sea is calm tonight means the night is very calm, the tide is full, moon lies fair means the bright light of moon is lying fair upon the straits means this one, ये इंग्लिश चैनल यहाँ पर है, उसको स्ट्रेट्स कहेंगे। जल संधि हिंदी में कहते हैं, जब दो स्थल को जल द्वारा जोड़ा जाता है तो उसको जल संधि कहते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेट्स कहते हैं उसको। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन, ये जो लाइन है, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन, ये कई अर्थों में लिया जाता है। एक तो ये अर्थ है क्योंकि फुल मून लाइट है। ठीक, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोर्ड को देखिए, अब राइटर यहाँ पे खड़ा है, ठीक, लाइट पड़ रही है उसको सामने, सब जगह फुल मून है, तो यहाँ भी पड़ेगा, यानी फ्रेंच कोस्ट भी पड़ेगा, यानी जो कोस्टल एरिया फ्रेंच का है, समुद्री किनारा है, यहाँ पर भी पड़ेगा। अब राइटर कह रहा है कि द लाइट ग्लिम्स, द फ्रेंच कोस्ट लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन। इसका मतलब कि राइटर वहां बहुत देर तक खड़े होकर के वॉच करता रहा, मीन्स ही वॉज स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्गर टाइम टू विजुअलाइज द थिंग्स। इट मीन्स अगर हम ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया इसका। ठीक है, अब इसको अगर पॉलिटिकल वे में लिया जाए, पॉलिटिकली, तो उस समय जैसे इंग्लैंड अपनी कॉलोनी दूसरे देशों में बना रही थी, कॉलोनी मतलब दूसरे देशों को गुलाम बना लेना, ठीक है, इसी तरीके से इंग्लैंड भी बना रहा था। एट दैट टाइम हम लोग खुद थे, इंडिया वाज एज ए स्लेव कंट्री फॉर ब्रिटिशर्स। ओके, सो अब यहाँ पर इस लाइन से हो सकता है कि एग्जैक्टली क्या लिखने की कोशिश की है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जो इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, इसके 2-3 इंटरप्रिटेशन मैं आपको एक साथ बता दूंगा यहाँ पे। कि एक तो ये हो सकता है कि जो पॉलिटिकल अचीवमेंट था पहले फ्रांस का, फ्रांस भी यहाँ आए थे, फ्रेंच आए थे ना इंडिया में, फ्रेंच पुर्तगीज सब आए थे, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए, यहाँ पे अपनी शासन को नहीं बना पाए, लेकिन ब्रिटिशर्स आए और इस्टेब्लिश कर लिए। तो ये हो सकता है, कहने का मतलब है यहाँ पे द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन, कहने का मतलब है कि जो उनका टेरिटोरियल पावर था, जो इनका इंपीरियल पावर, बेसिकली जो साम्राज्यवाद का पावर था फ्रांस का, वो पहले था और वो खत्म हो गया, एंड इज गॉन नाउ। ये चीज हो सकता है रियलाइजेशन, एक मीनिंग में। दूसरी मीनिंग ये हो सकती है कि सामने जो कंट्री दिख रही है फ्रांस, इसमें भी
पहले वैसे ही जो लाइट वर्ड है इसको दूसरे शब्दों में लिया जाए, फेथ इन क्रिश्चियनिटी, फेथ इन क्रिश्चियनिटी। अगर ये वर्ड लिया जाए तो वहां भी पहले फेथ था, तो लोगों के अंदर एक चमक थी, लोगों के अंदर मतलब एक खुशी थी, खुशी की चमक थी लोगों के चेहरे पे, बट नाउ इट इज गॉन। यानी इन फ्रांस आल्सो पीपुल आर लूजिंग देयर फेथ इन क्रिश्चियनिटी, और दे आर लूजिंग देयर रिलीजियस फेथ बिकॉज ऑफ साइंस। ओके, ये भी एक मीनिंग हो जाएगा। तो ये दोनों में से कौन सी मीनिंग है? तीसरी मीनिंग हो जाएगी जो आपके सरफेस मीनिंग है, लिटरल मीनिंग, कि मून लाइट है बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। धीरे धीरे आप देखेंगे सेटिंग चेंज होती चली जाती है लाइट की, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि राइटर वहां बहुत देर तक खड़ा रहा और इमेजिन करता रहा कि दुनिया में क्या होगा, कैसे होगा, क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, ठीक है। यानी ही वॉज वेरी थॉटफुल। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देयर इन द नाइट बाय वाचिंग दिस इंग्लिश चैनल, ठीक है, दिस इंग्लिश चैनल, ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। ये भी एक अर्थ हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें एग्जैक्ट क्या होगा क्लियर नहीं है, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ लेके मान के चलिए कि लॉस ऑफ फेथ वाज देयर इन फ्रांस आल्सो और इन होल यूरोप, यू कैन से एट दैट टाइम। इतने से लेके चलिए आप आगे। लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं? द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट, ठीक। अब यहाँ पे दोनों अर्थ आ जाएगा। क्लिफ्स, क्लिफ्स का मतलब होता है समुद्र जैसे किनारा है, उसके साइड में जस्ट एक पथरीला ऊंचा जगह, ठीक है, पत्थर का हो ऊंचा, ठीक है, और उसके ठीक डीप, अचानक साइड में डीप में समुद्र आ जाए, वो क्लिफ्स कहे जाते हैं, ठीक है। एक छोटी सी ऊंची पहाड़ी कह सकते हैं आप, क्लिफ्स। अब इंग्लैंड को कह रहे हैं कि इंग्लैंड इज स्टिल स्टैंडिंग। अब इसको पॉलिटिकली लिया जाए तो ये हो जाएगा कि जो पावर थी फ्रांस की अब वो धीरे धीरे खत्म हो गई है, लेकिन इंग्लैंड स्टिल स्टैंडिंग ग्लिमरिंग एंड वास्ट, ठीक है, मतलब चमकते हुए। कहने का मतलब है कि नाउ पॉलिटिकली दिस कंट्री इज मोर पावरफुल देन फ्रांस। ओके, ये भी एक अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि इनको शायद ऐसा लगा हो कि फ्रांस में ज्यादा लॉस हुआ हो फेथ का, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है, ठीक है, तो इसलिए स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आउट इन द ट्रांक्विल बे, तीसरी मीनिंग ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मून लाइट को लेकर के, कि सामने जो फ्रेंच कोस्ट दिखाई दे रहा है उस पर मून लाइट चली गई, लेकिन हमारा जो है क्लिफ एरिया यानी जो डोवर बीच का एरिया है, इस पे अभी भी मून लाइट पड़ रही है। तो आप जो भी सुटेबल समझिए उसको ले लीजिएगा मीनिंग। यहाँ पे कई मीनिंग इसकी निकाले जा सकते हैं। नाउ come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray where the sea meets the moon-blanched land, listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling at their return up the high strand, begin and cease and then again begin with tremulous cadence, slow and bring the eternal note of sadness in। जो लास्ट लाइन है, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, ये फ्रेज बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, दिस लाइन बिलोंग्स टू विच पोएम, ठीक है, द इटर्नल नोट सैडनेस इन, इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, ये लाइन आपको पूछा जाएगा, पक्का एमसीक्यू में आता है कि ये किस पोएम में बिलोंग करता है या किसने लिखा है। तो ये एमसीक्यू के लिए आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे ही इज कॉलिंग टू हिज बिलविड। अब यहाँ पे बिलविड का एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन नहीं है कि वो उनकी वाइफ ही है या कोई और, लेकिन जो बायोग्राफीज उनकी है उसमें ये बात लिखी गई है कि इन 1851 ही विजिटेड बेसिकली ट्वाइस टू डोवर बीच अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, ठीक है। तो ये मान के चलिए यहाँ पे कि वो अपनी वाइफ के साथ है, ठीक है। अब देखिए चांदनी रात है, समुद्र किनारा है, फुल मून लाइट, एकदम सामने स्ट्रेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, वाटर स्ट्रेट्स, और मून लाइट्स फेयर मतलब चमकती हुई रात दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको क्या फील हो रहा है वहां पे? द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस मतलब कि ये जो टाइड है, जो हवा समुद्र की लहरें जो टकरा रही हैं पेबल्स के साथ और उनको फिर वापस खींच ले जा रही हैं। अब देखो यहाँ जो पेबल वर्ड है, पेबल मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा। टाइड आ रहा है, ठीक है, फुल मून में टाइड आता है, टाइड आ रहा है समुद्र से,
पत्थर को अपने साथ इधर खींच के ले जा रहा, फिर वापस जब पानी जा रहा है फिर वापस लेके चला जा रहा है। अब यहाँ पे जो पेबल्स को लिया गया है, ये एक सिंबल लिया गया है। सिंबल किस चीज का? पीपल वांट्स टू इंक्रीज देयर फेथ इन क्रिश्चियनिटी। ओके, जैसे आप रिलीजियस टीचर्स को सुनिए तो आपका फेथ थोड़ा देर के बढ़ जाएगा, फिर वापस आए, फिर वापस जो आपने थोड़ी वो साइंटिफिक बातें की, फिर खिसक के वापस आ गया वहीं। तो जो समुद्र में टाइड आ रहा है तो पेबल्स मतलब जो पत्थर है किनारे के, वो उसके साथ बह रहे हैं, फिर वापस चले जा रहे हैं, फिर बह रहे हैं, फिर वापस चले जा रहे हैं। यानी पीपल आर मूविंग इन सच ए वे देयर फेथ, ओके, कि जब आप रिलीजियस गुरु को सुने तो थोड़ी सी फेथ बढ़ी, फिर वापस आए, साइंस को सुना, फिर खिसके वापस आ गया। मतलब आदमी फिर यही ऊपर नीचे कर रहा है उसी में। तो जो एक कंफ्यूजन की स्थिति आ गई एग्जैक्टली, ठीक है। यानी देयर इज नो स्टेबिलिटी इन देयर थॉट, जस्ट लाइक टाइड इज टेकिंग द पेबल्स टू एंड फ्रो, ठीक है, बार बार इधर उधर ले जा रहा है। उसी तरीके से लोगों का फेथ है जो उस समय मूव कर रहा था, मींस दे आर नॉट स्टेबल एग्जैक्टली वेदर दे शुड बी थिस्ट और अथिस्ट, कि उनको क्या होना चाहिए, आस्तिक प्योरली हो जाना चाहिए, यानी रिलीजन को विश्वास करना चाहिए, या पूरा रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये जब पोएम पब्लिश हुआ 1867 में, तब तक ये अपने आप को एग्नोस्टिक डिक्लेयर कर चुके थे। मैथ्यू अर्नोल्ड अपने आप को एग्नोस्टिक डिक्लेयर कर चुके थे। एग्नोस्टिक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका रिलीजियस फेथ क्लियर ना हो, ठीक है। कई बार आपको भी लग सकता है ऐसे कि ईश्वर है, कई बार लगता होगा कि नहीं है, कई बार लगता है पता नहीं। तो जो पता नहीं वाला है ना, वही होता है एग्नोस्टिक। तो ये चीज है आपका यहाँ पे। अब जो पेबल्स या जो टाइड है, ठीक है, लोग समुद्र किनारे किस ले जाते हैं? एंजॉयमेंट। कैडेंस का मतलब होता है एक लाइट एंजॉयमेंट जो आप लंबे समय तक फील हो, उसको कैडेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आप जाइए झरने किनारे, आप झरने की थोड़ी बहुत जो गिरते हुए देखिए उसको ध्यान से, आपके अंदर से एक फील आती है, एस्थेटिक प्लेजर जो फील होता है, वो कैडेंस का काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कैडेंस फील हो रहा है वो स्लो हो जा रहा है। एंड ही इज फीलिंग एन इटर्नल नोट ऑफ, इटर्नल मीन्स सदा के लिए, जो हमेशा शाश्वत हो, इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। कहने का मतलब है कि चाहे जितना प्रयास कर लें, ठीक है, उस समय इंसान चाहे जितना प्रयास कर रहा था, खैर ये उन्होंने अपने लिए लिखा है स्पीकर, चूंकि पोएट हिमसेल्फ इज देयर, सो ही फील्स हाउ मच आई एम ट्राइंग बट आई एम नॉट फीलिंग एंजॉयमेंट हियर, ही इज फीलिंग ए सेंस ऑफ लॉस इन क्रिश्चियनिटी। और यही रीजन रहा कि आते आते धीरे धीरे लॉस पे होते होते अपने आप को लास्टली डिक्लेयर कर दिया उन्होंने एग्नोस्टिक, ठीक है। सो लास्ट लाइन नोट कर लीजिएगा, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। ये लाइन पक्का आती है, एग्जाम में आता है एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सोफोक्लिस लॉन्ग अगो heard it on the Aegeans, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound of a thought, hearing it by this distant northern sea. अब इन्होंने जो कहा इस लाइन, इस स्टंजा में कह रहे हैं, सोफोक्लिस, सोफोक्लिस बेसिकली नेम ऑफ ए राइटर, ग्रीक राइटर, अराउंड 450 BC, मतलब क्राइस्ट चर्च से 400-450 साल पहले, ठीक। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जैसे एडिपस, इलेक्ट्रा, अजाक्स, ये सब बहुत फेमस बुक्स हैं उनकी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एशियन सी, उन्होंने ये जो टोन था, यानी ह्यूमन माइजरीज की टोन है, बहुत पहले सुन ली थी, और जिसको उन्होंने अपनी ट्रेजेडीज में दिखाया है, लिखा है, ठीक है। सोफोक्लिस का उन्होंने जिक्र किया है। एशियन एक सी का नाम है। अगर आप देखेंगे ऐसे चित्र तो एग्जैक्ट नहीं बना सकते, आपको हिंट दे सकते हैं थोड़ा सा। आप देखेंगे कि ये ऐसे सी है, ठीक है, इधर कई टुकड़ों में है। यहाँ पे स्पार्टा है, यहाँ ग्रीक है, यहाँ मैसेडोनिया है, और यहाँ पे ट्रॉय है, ठीक है, ट्रॉय। ये पूरा जो है ये बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एशियन सी है। आप लोग इस ट्रॉय और स्पार्टा कहानी सुने होंगे। तो ये स्पार्टा यहाँ है, ठीक है, स्पार्टा, फिर यहाँ पे ग्रीस है, फिर थेबीज है, फिर मैसेडोनिया है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये इधर लैंड है पूरा, ये बीच में समुद्र है, इस समुद्र का नाम है एशियन सी, एशियन सी। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सोफोक्लिस ने शायद ये जो टोन है, जैसे आज हम सुन रहे हैं माइजरी, या लोग ह्यूमन माइजरी मतलब कष्ट,
ठीक है, कि इंसान कितना कष्ट में हो जाएगा आगे चल करके, इस चीज को शायद उन्होंने बहुत पहले महसूस कर लिया और उसको अपने ट्रेजेडीज में दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉय है, ट्रॉय और स्पार्टक कहानी आप सुने होंगे, तो ये एजियन सी है बीच में। ठीक है, जब एंशिएंट ग्रीक का पिक्चर देखेंगे तो वहां पे दिखाई देगा आपको इस तरह का। अब तो सब देश का नाम बदल गया, अब तो इधर तुर्की उर्की और सब आ गया था, पता नहीं ट्रॉय शायद तुर्की में ही हो गया है क्या। ठीक है, ऐसे। नाउ द सी ऑफ फेथ was once to at the full and round earth shore lay like the folds of a bright girdle furled, but now I only hear its melancholy long, long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down and vast edges drear and naked singles of the world. Okay, करा द सी ऑफ फेथ। अब यहां पे देखिए द सी ऑफ फेथ में सी यस कैपिटल लिखा है, दिख रहा है। अब यहां पे जब द सी ऑफ फेथ यानी लोगों का जो विश्वास था, इट वाज सो वास्ट लाइक सी। ठीक है, सी को कोई सुखा सकता है नहीं, यानी उसको आप हिला भी नहीं सकते कि यहां से उठाए और यहां बना दिए सी, ऐसा भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है पीपल वेर हैविंग सो रिजिड फेथ इन क्रिश्चियनिटी, बट नाउ इट इज मूविंग और इट इज शिफ्टिंग और इट इज लूजिंग। तो यहां पर इस चीज को दिखा रहे हैं, द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू फुल, मतलब एकदम फुल था। कहां पे? राउंड द अर्थ शोर, राउंड द अर्थ शोर मतलब पूरी पृथ्वी के किनारे पर। इट मीन्स टू से हियर क्रिश्चियनिटी वाज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और जहां से निकला वहीं लूज हो रहा है। ये चिंता की बात है यहाँ पे, इसी चीज को दिखा रहा है। ही इज वेरी डिप्रेस्ड बेसिकली, और ही इज फीलिंग एंगोइज्ड। ओके, बहुत व्यथित अंदर से फील कर रहे हैं, और इस चीज को यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। कह रहे हैं वाज वंस टू एट द फुल राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फर्ल्ड। ब्राइट गर्डल फर का गर्डल फर्ल्ड मतलब है यहाँ पे जिसे एक कपड़ा होता है जो किसी कमर के चारों तरफ बांध लेते हैं आप, उसको गर्डल कहते हैं। ठीक है, कमर बंद बेसिकली। कहने का मतलब है जो क्रिश्चियनिटी की फेथ थी या लोगों द फेथ इन क्रिश्चियनिटी, इट वाज लाइक अ गर्डल अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के चारों तरफ क्रिश्चियनिटी फैली हुई थी, एंड इट वाज बिहेविंग लाइक ए गर्डल। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है? टूट रहा है या धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली, मतलब अब मैं केवल इसके दुख को सुन पा रहा हूँ या इसके मेलनकली को सुन रहा हूँ। लॉन्ग विड्राइंग रोर, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे व्यथित होकर रो रहा हो, रोर कर रहा हो। ठीक है, रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रीयर एंड नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अगेन जो टाइड है, टाइड बार बार आकर के, सिंगल्स मीन्स पेबल्स, जो किनारे के पेबल्स हैं, उसे टकरा रहा है। उन टकराहट में जहां पे उनको एंजॉयमेंट फील करना चाहिए था समुद्र के किनारे, लेकिन उसमें क्या सुनाई दे रहा है उनको? रोर, विड्राइंग रोर, मतलब लोगों की दहाड़े या लोगों की चिल्लाहट सुनाई दे रही है, उसमें चीखें सुनाई दे रही हैं। लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिटर्न होता तो ये पक्का पूछा जाता। ठीक है, लास्ट स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आह लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain. And we are here on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. ठीक, इसके 4-5 लाइनें, ये पूरा स्टेंजा ही आप कई बार पढ़ डालिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन इंपॉर्टेंट है, कह रहा आह लव लेट अस बी ट्रू, नाउ ही इज कॉलिंग। अब एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब अपने जो उनकी बिलीविड है वहां पे उसे बुला रहे हैं। आह लव लेट अस बी ट्रू, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, मतलब लोगों के प्रति उनका इतना डाउट बढ़ गया है कि अब उनको किसी में विश्वास ही नहीं हो रहा है। अपनी वाइफ से भी अब एक तरह से कहा जाए तो उस पर भी उनका कम विश्वास हो रहा है, और उसको कह रहे हैं लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। ठीक है, मीन्स ही appealing to be true to him, to his beloved। ठीक है, अपने beloved को अपील कर रहे हैं कि let us be true to one another,
कि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे हों। कहने का मतलब है कि उसमें लॉस, देखिए यहाँ पे जो रिलीजियस फेथ है इस चीज को शो कर रहा है, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स लोग एक दूसरे के प्रति जो मानवता का भावना रखते हैं उसके लिए वो धीरे धीरे कम हो रहा है लोगों के अंदर। टू लाइव कर टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाइव फॉर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स। मतलब इस दुनिया में हम लोग कम से कम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। अगर कोई नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, या हम दूसरे पर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों आपस में कम से कम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। कर लैंड ऑफ ड्रीम्स सो वेरियस सो ब्यूटीफुल सो न्यू hath really neither joy nor love nor life nor certitude nor peace nor help for pain। ये जो दो लाइन है, hath really neither joy nor love nor life nor certitude nor peace nor help for pain, ये भी MCQ में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कह रहे हैं कि जो दुनिया हमारे सामने एक सपने की तरह दिखाई दे रही है, सो वेरियस मतलब बहुत विचित्र टाइप, अलग अलग तरीके की, सो ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर भी, सो न्यू बहुत नई भी, हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, ना तो कोई जॉय है ना तो कोई लाइट है ना कोई पीस है, नॉर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मीन्स सर्टेनिटी, निश्चितता, मीन्स टू होम यू कैन बी ए सर्टन, किसी के प्रति आप हो सर्टेन हो सकें। मीन्स करेंगे पीपल फेथ आर नॉट स्टेबल, नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, ना तो दुख में लोग साथ देंगे या दे रहे हैं। मतलब कहने का ही इज सो डाउटफुल टू एनीवन इन द वर्ल्ड दैट ही फील्स डिप्रेस्ड। एक लाइन में कहा जाता है ही इज नॉट डिप्रेस्ड। ठीक है, इतना उसको मतलब फेथ लॉस हो चुका है लोगों के प्रति। नॉट ओनली क्रिश्चियनिटी, लॉस ऑफ फेथ इन क्रिश्चियनिटी मीन्स लॉस ऑफ फेथ इन ह्यूमैनिटी। ठीक, ऐसा मानना है क्रिश्चियनिटी में। और ह्यूमैनिटी में लॉस हो जाएगा तो कोई हेल्प दूसरे करेगा, किसी को कोई कष्ट है तो नहीं करेगा। इस चीज को खुद रियलाइज कर रहे हैं ऐसा चीज यहाँ पे, ये सारा चीज अपने मन में महसूस कर रहे हैं केवल। ठीक है, किसी हेल्प की चीज दिखाई नहीं, कभी मांगे हो कोई न दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लास्ट लाइन और इंपॉर्टेंट है इसकी, स्वेप्ट विथ कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। ओके, ये जो लॉस है लोगों का, स्वेप्ट विथ कंफ्यूज अलार्म्स, यानी पीपल आर सो कंफ्यूज्ड, आर people's confusion are alarming and it is struggling and flighting, मतलब तो तेजी से फैल रहा है लोगों के अंदर अविश्वास। और ये उस तरीके से हो जाएगा एक दिन, where ignorant armies clash by night। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, where ignorant armies clash by night। ओके, ये जो लाइन है लास्ट लाइन, armies clash by night, this is basically taken from Greek mythology, whether it is myth or it's historical fact, I don't know। ग्रीक में एक घटना हुई थी, एक कोई वार हुआ था, ठीक है, जिसमें रात को बहुत अंधेरा हो गया, रात अब पूरी मतलब फुल नाइट हो गया, और उसमें उनकी आर्मीज के लोग आपस में ही लड़ गए और अपने ही सैनिकों को मार डाले। सुबह तक कोई नहीं बचा, जो बचे देखे तो जिसको मारे तो अपने ही था। ठीक है, ये ग्रीक मिथ है, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज मतलब रात को इग्नोरेंट, पता नहीं चल रहा है कौन अपनी साइड है कौन दुश्मन साइड का है। और ग्रीक में ज्यादातर युद्ध पहले रात को लड़े जाते थे। ठीक है, और एक ये सच्ची घटना है वहां की किसी युद्ध की, जिसमें आर्मीज मतलब जो सैनिक थे अपने ही लोगों को मार डाले इग्नोरेंसी में, मतलब उनको खुद नहीं पहचान पाए ठीक से और अपने मार डाले। तो कहीं ऐसा ना हो उसी तरीके से कि जो लॉस ऑफ फेथ हो रही है क्रिश्चियनिटी में, एक दिन लोग अपने ही ऊपर जो है एक दूसरे के ऊपर मारकाट करते हैं या एक दूसरे के ऊपर ही जो है प्रॉब्लम बनते चले जाएं। ठीक है, तो ये जो लास्ट लाइन है आपका, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक मिथ। सो आई होप विद दिस पोएम इज ओवर।